Hi everyone, welcome back. In this session of videos that we are making for our UPSC we'll try to revise the BRICS summit that had happened last year. Now, why it becomes important for us, we'll mainly discuss in terms of what was the context of this, what were the outcomes, and what is there for India in this regard, and how BRICS play a crucial role at the international space. So first thing, this BRICS summit happened in South Africa. It was in Johannesburg. Second, what was the context of this BRICS summit? This was the first BRICS summit that had happened in person. Actually, the people met post the Russia-Ukraine crisis had started. Then Putin couldn't participate in this because sanctions had been put on him. Since International Criminal Court had released a warrant against him. So the Russian Finance Minister Sergei Lavrov, he was able to participate. And why Putin couldn't participate? Because the summit was being held in in South Africa, and since South Africa is a part of the International Criminal Court, that's why. And apart from that, it was the first time that Mr. Modi and Mr. Jinping met for the first time post the LSC line of actual controlled clashes that had happened post 2020. Now, what is BRICS? Why it is important? BRICS as a term, it was coined by one of the economists of Goldman Sachs company that was in 2001. It refers to the nations having fast growing economics, and these nations aim at changing the way of global economic governance. So the primary focus of BRICS has conventionally been on the global economic governance. Now, what are the key goals of BRICS? First is to ensure economic cooperation across the members. Second is to provide development financing. For that, for example, institutions such as क्या नाम था यार उसका, वन वॉज न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट वॉज इंस्टीट्यूटेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट CRA, कंटीजेंट रिजर्व एजेंसी, this was also instituted to finance. Then apart from this, it also tries to democratize the global order in terms of decision making. For example, now there is a kind of domination of the West, but the G20 tries to raise the voice of the developing nations, and therefore it tries to make sure that at the international level, the decisions are taken more democratically. So it tries to make a multilateral world instead of unilateral or Western dominated world. So this content, this also important that this content we have derived mainly from one of the videos of Next IAS. That was there on YouTube. So one of the faculties of Next IAS, one madam was teaching all this. So this content we have derived from there only. तो I thought that this is quite holistic, तो इतने से काम चल जाएगा, इसलिए इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. आगे देखता हैं. ब्रिक्स का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो 2006 में it met for the first time. Then actual push the BRICS as an institution got after the 2008 financial crisis. Because 2008 financial crisis showed that the concept that the United Nations, then the Western economies, they are not infallible in nature. So in 2009, it was the first summit that was held in Russia. In 2010, South Africa became its member. So the group expanded from BRIC to BRICS. Now, what the BRIC signifies in terms of the overall power that it has. So 40% of the global population, 25% of the global economy, and 20% of the global trade. This is quite important. तो ये चल रहा था फिलहाल के लिए. आगे देखते हैं. अभी हमारा जो पेन है उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो आगे ऐसे रिवाइज कर लेंगे. अब व्हाट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ द समिट दैट वाज हेल्ड इन 2023. अब ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि this was a question asked in one of the mocks that what were the highlights of the G20 summit that was held last year, in which our nation had also participated. So first is that to break the dominance of dollar. So dollar has dominance in terms of international trade. For example, also in case of forex reserves that are mainly kept in dollars. For example, अभी अपना forex reserves कितना था थोड़ा टाइम पहले तक $596 billion था, उससे बढ़ गया था, शायद 600 क्रॉस कर गया था. And apart from that, possibility of expansion of BRICS. So as of now, BRICS is limited only to
6 nations. But now there have been talks and debates about expansion of it. Around 40 members are in the queue who wants to be a part of the BRICS. अब डी डॉलराइजेशन की हम बात करते हैं तो क्यों ज़रूरी है? डी डॉलराइजेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑन डॉलर. और किसी भी करेंसी की अगर डोमिनेंस होती है तो दैट करेंसी प्लेज अ क्रूशियल रोल एट इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग. सो इट हैज़ मोर बार्गेनिंग पावर, it dictates the trade, it dictates the way in which oil, gold, etc. that would be traded, and it also makes the nation who is having that currency more powerful. ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन अगर हम करेंगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन कर्बिंग द सैंक्शंस. फॉर एग्जांपल हियर स्पेसिफिकली सैंक्शंस हैव बीन पुट ऑन रशिया. जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो various nations that are dealing in dollars and various international banks, even in terms of the SWIFT banking system that we have, it has debarred Russia from indulging into trade. है कि नहीं? तो ये sanctions वगैरह को हम curtail करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा also to find alternate way of trade and currency. For example, इंडिया और रशिया के बीच में जो थोड़े टाइम तक ट्रेड हो रहा था that was being done in रुपी और रूबल, और रशिया चाइना के बीच में हो रहा था तो रूबल और रेमनेबी में किया जा रहा था. अब चैलेंजेस क्या है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव डी डॉलराइजेशन? तो दिस इज ड्यू टू द सर्टन चैलेंजेस दैट वी हैव. फॉर एग्जांपल 60% ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व दैट वी सी दैट इज़ इन डॉलर्स, then 40% of the global debt that is also in dollars, and 80% of the foreign trade that is happening that is also in dollars. So this shows the kind of dependence that is already there in dollars. And apart from that, even in case of cryptocurrencies have a kind of informal parity with dollar. जैसे डॉलर बढ़ता है डॉलर घटता है वैसे क्रिप्टो करेंसी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट हो रही हैं. और क्रिप्टो करेंसीज़ का बैक एंड में मतलब ट्रेड वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं अच्छा डॉलर में लिस्टेड होता है वो, कि अच्छा इतना डॉलर चल रहा है उस तरीके से. अब ऑप्शंस क्या है ब्रिक्स के पास डी डॉलराइजेशन का? एक तो भैया खुद की करेंसी निकाल लो, बट एट द प्रेजेंट स्टेज इट बिकम्स क्वाइट unfeasible to launch its own currency. The major reason being पहला तो lack of coordination है इनके बीच में, and apart from that even the member nations are trying to promote their own currency. For example, India wants to promote its own currency rupee, China wants to promote renminbi, और वैसे और there is also lack of coordination in terms of जैसे इंडिया चाइना के बीच में coordination का इशू है. इंडिया renminbi में ट्रेड नहीं करना चाहता, चाइना रुपये में ट्रेड नहीं करना चाहता, इस तरीके से. और एक्सचेंज रेट के फिर इशू हो गया. आप किसी एक पर्टिकुलर अगर करेंसी में अगर आप ट्रेड करोगे डॉलर के अलावा तो आपका डिपेंडेंस उस करेंसी के ऊपर भी बढ़ जाएगा. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो हर एक नेशन ये चाहता है कि द ट्रेड शुड बी देयर इन देयर ओन करेंसी ओनली. आगे वॉलेटिलिटी एंड एक्सचेंज रेट्स, ठीक है. अभी CRA कंटीजेंट रिजर्व जो एजेंसी और न्यू डेवलपमेंट बैंक दे वर इंस्टीट्यूटेड इन 2015 बट दे हैव नॉट बीन एज इफेक्टिव एज एनविसाज्ड. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. आगे नेशंस प्रोमोटिंग डोमेस्टिक करेंसी ही हमने देख लिया. अब पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन के केस में चैलेंजेस क्या है? मतलब क्यों देखा जा रहा है कि एक्सपैंड करना? ये इसलिए देखा जा रहा है टू काउंटर द हेजिमनी ऑफ वेस्टर्न नेशंस. ठीक है, वेस्टर्न नेशंस जो डोमिनेट कर रहे हैं, डेवलप नेशंस जो डोमिनेट कर रहे हैं. अब क्या होगा, जितने ज़्यादा मेंबर आएंगे इस ग्रुप के अंदर वैसे ही क्या होगा, इनका एक तो फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक पावर बढ़ जाएगा, है कि नहीं. उसके अलावा ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाएगा. एंड इट विल ऑल्सो सिम्बोलाइज बिगर ग्रुप, है कि नहीं, बड़ा ग्रुप, उनके डिसीजंस या उनके इंटरेस्ट. तो ये हो सकता है. डाइवर्सिफिकेशन वगैरह करना ज़रूरी है. इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें? इंडिया का स्टैंड ये है कि एक्सपेंशन शुडंट बी डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन, और उसके अलावा देयर शुड बी क्लियर गाइडलाइंस फॉर एक्सपेंशन. इसके अलावा इंडिया ये भी सोच रहा है कि दिस में ऑल्सो इम्पैक्ट द बायलैटरल इशूज़ दैट आर ऑलरेडी देयर. बायलैटरल इशूज़ या फिर बायलैटरल रिलेशंस है, जैसे इंडिया और चाइना का जो इशू चल रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट हो सकता है. और गाइडलाइंस वगैरह हमने देख लिया. ठीक है. साउथ अफ्रीका क्या कह रहा है? साउथ अफ्रीका वॉज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग द एक्सपेंशन बिकॉज साउथ अफ्रीका का ये बिलीव था कि दिस विल लोअर द वैल्यू ऑफ द नेशन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है. ज़्यादा नेशन हो जाएंगे तो सबकी जो वोट शेयर है वो सब वैसे ही कम हो जाता है. ठीक है. चाइना और रशिया हम देखें, ऑन द अदर हैंड चाइना एंड रशिया आर प्रमोटिंग दिस एक्सपेंशन. अब क्यों है? क्योंकि चाइना एंड रशिया वांट्स टू बैलेंस द हेजुमनी ऑफ द वेस्ट. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली चीज़. तो अगर ज़्यादा अगर नेशंस अगर ऐड करेंगे इसके अंदर तो इससे क्या होगा,
एक तो चाइना और रशिया का जो ट्रेड है उनके साथ, पहली चीज़ ट्रेड बढ़ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और वैसे ही जो हम और भी नेशंस ऐड करेंगे उनका डिपेंडेंस भी इनके साथ बढ़ जाएगा एक तरीके से। और जब आप किसी ग्रुप में ऐड होते हो तो एक तरीके से आपका जो आइडियोलॉजी भी सिंक में चलने लग जाता है, ठीक है। मतलब कंसेंसस वगैरह बिल्ड होता है, एक चीज़ पे आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मतलब पावरफुल पावर्स है, दे माइट ट्राई टू डोमिनेट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर नेशंस। जैसे चाइना, रशिया, ये सब हो गया तो पावरफुल देश हैं। अब कौन कौन से देशों ने बोला है कि हम मेंबर बनना चाहते हैं? वेनेजुएला हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अर्जेंटीना ने भी बोला था, ये कुछ देश है। पॉजिटिव्स क्या है ब्रिक्स के? पॉजिटिव्स तो ये है कि भैया एक तो आपका जो डेवलपिंग नेशन से ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल ऑर्डर नहीं ग्लोबल साउथ है, उसको वॉइस देता है। जो देश है ब्रिक्स के अंदर वो काफ़ी डाइवर्स है। ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका से आ गया, फिर साउथ अफ्रीका आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आ गया, फिर रशिया आ गया आपका, वैसे चाइना, इंडिया, ये सब आ गया। आगे क्या, इन एस्पायरेशनल नेशंस का ग्रुप है, डेवलपिंग नेशंस है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और मेन किस लिए बनाया है कि ग्लोबल ऑर्डर है उसको बैलेंस करने के लिए, और जो वेस्ट की जो हेजिमनी थी उसको काउंटर करने के लिए। और अब क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रिक्स टू थिंक बियॉन्ड द हॉराइजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आप इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी जितने भी मतलब आपको दिख रहे हैं सेक्टर्स वगैरह, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, फिर आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका ट्रेड हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये करना चाहिए। तो ये था हमारा ब्रिक्स इन शॉर्ट। तो आई थिंक ब्रिक्स हैज़ बीन मोर लेस हमने कंप्लीट कर लिया। एंड करते हैं इसको, इस पर आगे भी डिस्कशन की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो चलो नेक्स्ट बनाता हूँ, बाय।